आवहे ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलिए, इसकी समरी कौन करेगा? Swamiji, I'm the first batsman. ओके, Do it. Come on. करिए। I start? You are doing the summary, okay? Okay, yes. ठीक। I first offer my pranams to Thakur, Ma and Swamiji, and most importantly, Swami Brahmeshananji. Due to whose strength, guidance, and wisdom, every problem in Sansar appears as nothing. Really. Yes. So I thank him a lot and start with his blessings. Manmohan Mitra. You can hear me properly? Yes. Yes, yes. Okay. Manmohan Mitra's father was a successful physician wedded to traditional Indian culture. His mother, Shyama Sundari, was pious and religious. He was deeply influenced by Keshav Chandra Sen and the Brahmo Samaj. Seeing his excessively religious bent of mind, his grandfather got him married at the tender age of 17. The spiritual practices of the Brahmos, their dry religious study, discussions, and mechanical prayers did not quench the spiritual yearning of his heart. On the 13th of November 1879, Manmohan Mitra had a strange and prophetic dream. He was caught in a holocaust in which all his relatives were dead and there were floods everywhere. He was left alone floating on a plank when he heard a voice saying that no one had survived the deluge except those who had realized God, and that he was to meet and live with the survivors. He was awoken from the dream of Maya on this day. This dream made him decide on that very day to go with his cousin Ramchandra Datta and his friend to meet Sri Ramakrishna, whom he had read about earlier. In his first meeting with Sri Ramakrishna, Manmohan Mitra was deeply impressed with his simplicity and humility and became his ardent devotee for life. He decided to visit Dakshineshwar every Sunday thereafter. The answers Sri Ramakrishna gave Manmohan Mitra on the second visit are as below. On being asked whether God was with form or formless, Sri Ramakrishna said to him that God is sometimes with form, sometimes formless, and also beyond both. He is all-pervading. It is difficult to ascertain his real nature. God manifests himself according to the mental attitude of different aspirants. To understand God's real nature, one needs to surrender oneself to him and pray. At the right time, a person can even see God. This was what Thakur said. On faith, Sri Ramakrishna guided him thus, that faith was of two kinds: initial faith, faith in the scriptures and the Guru, and real faith that comes from direct experience. When Sri Ramakrishna told Manmohan Mitra that the world is a framework of illusion and impermanent, he immediately connected and resonated with this idea. When Sri Ramakrishna added that the world is also a mansion of mirth, if one knows how to get joy from it. Sri Ramakrishna advised him to somehow keep his mind on God, either by japa or singing his glories. This would remove all his obstacles. When asked about how he could get longing or yearning for God, Sri Ramakrishna said to him that getting longing was possible only when a person had satisfied all his mundane desires and also given up all attachment to lust and gold. Further, he said that it was only comforts and enjoyments when they were shunned like filth
And when a person would cry with yearning for God, would longing really arise? This guidance thrilled Manmohan, and he fell at Sri Ramakrishna's feet, accepting him as his guru. Manmohan's ego and his emotional and touchy nature was his real problem. Once, when Sri Ramakrishna praised Surendra's devotion and not Manmohan's, he became very upset and piqued and stopped visiting Sri Ramakrishna. Despite several messages sent to him by Sri Ramakrishna, he never went to Dakshineshwar, though his mind was yearning for Thakur and was very disturbed. But one day, to his immense surprise, Sri Ramakrishna himself went to meet him out of sheer concern. This act of Sri Ramakrishna shook Manmohan deeply, and he fell sobbing at his feet, realizing his mistake. Manmohan and Ram Datta got converted from rank atheists to ardent devotees. They would get together, devotees, and sing devotional songs every evening. His entire family, along with his 4 sisters and his brothers-in-law, also became devotees. His wife also in due course changed completely and became a devotee. In fact, Swami Brahmanandji was earlier married to one of his sisters. Manmohan realized from several personal experiences that Sri Ramakrishna was omniscient and also an avatar. Once his daughter was critically ill and his mother asked him to go to Dakshineshwar. He was reluctant to go, but only went on the urging of his mother. Before he could speak to Sri Ramakrishna, he realized that Thakur was already aware of the problem, and with his blessing, his daughter actually survived. In fact, his devotion was so strong that once, when faced with a cyclone and imminent death, he simply fearlessly laughed in the face of such a storm and went to Dakshineshwar. He would invite Sri Ramakrishna to his place and also visit other places with him. Though Manmohan Mitra sincerely followed the teachings of Sri Ramakrishna and would cry to God profusely, he still did not have the vision of God, nor peace of mind. But now let's see what happens. Once, however, he and Ram were asked to give a lecture on what is true religion on the behest of Sri Ramakrishna. This was followed by devotional singing, and that lasted until midnight. It was here that Manmohan lost all outward consciousness and did not regain it until the next day. This happened because Sri Ramakrishna had transmitted the spiritual power to him. They say that if a person wants God and God takes away everything from him, and if he continues to love God, God becomes his slave. Manmohan passed through several ordeals. His mother passed away and even one of his daughters. After some time, he also lost his wife. Manmohan accepted these ordeals with peace and surrendered to the will of God. Manmohan spent his later years preaching about the Master and giving spiritual discourses. He would spend long hours at night in meditation and had many visions and would remain most of the time in an ecstatic mood. After the death of Swami Vivekanand, Manmohan somehow sensed his imminent death. He expired on Jan 30th, 1903 in yoga, repeating the name of God. He had continuously been repeating the Thakur's name for the last 3 days before he passed away. Now I go to Surendranath Mitra. Yes. Surendranath Mitra had a well-paying job as a commercial agent of Dost Company, a large British firm. He was affluent, handsome, and carefree. He got drunk often and was promiscuous. His licentious lifestyle gave him tremendous mental agony, which even prompted him to attempt suicide. He, however,
He was, however, saved by the powerful words of a Bhairavi, who said to him, "My son, God alone is true and everything else is false." He gained tremendous strength from this message. Ramchandra Datta, knowing of Surendra's anguish, persuaded him several times to visit Thakur. He finally agreed and went to meet him with an attitude of pure defiance and rebellion, saying, "If that holy man of yours is fake, I shall twist his ears." Yes. However, Surendra's first meeting with Sri Ramakrishna shook him deeply, and it became a turning point in his life. He adopted the attitude of a kitten, not a baby monkey, and decided to be satisfied in any condition that the mother would put him in henceforth. He became deeply devoted to Sri Ramakrishna and visited him every Sunday. To the amazement of his friends, Surendra got transformed from one who was indifferent to God and religion to a man who developed a tremendous yearning for God. However, Surendra still continued with his bad habits and would visit houses of ill fame. After doing that, overwhelmed with compunction, he would avoid meeting Sri Ramakrishna for days. But Thakur, on hearing of his ways, did not judge him. He accepted him with love and open arms, and only advised him to take the Divine Mother with him and seek her protection whenever the inclination to pursue his old ways would overpower him. He also asked him to fight his weakness like a hero. Surendra loved Ma Kali and would worship her with great love in his shrine at home. However, being a worshipper of Shakti, he never considered it a sin to drink liquor. Ramchandra Datta, on the contrary, would often urge him to give up this habit, but Surendra would refuse. One day, after much persuasion, he agreed to go with him to Kolkata to meet Sri Ramakrishna. He promised to give up his habit only if Sri Ramakrishna, on his own initiation, would ask him to give up drinking. When they went on that day to Kolkata, much to his surprise, Thakur advised him to reduce his consumption of alcohol and have it only after offering it to the Divine Mother. He also blessed him, saying that the excitement he would feel after taking liquor would soon be transformed into divine inebriation. This blessing proved true. He continued to drink daily, but would first offer it to the Divine Mother. And what ensued as a result was that he would weep with yearning for the Mother and then be lost in deep meditation. This was the magical effect of Thakur on Surendra. Sri Ramakrishna never chastised Surendra for his bad habits, but slowly, with love and affection, totally transformed him and conquered his heart. Surendra, once meditating in his shrine, decided to test Sri Ramakrishna's divinity. He thought that if the master would appear before him, he would consider him to be an avatar. The master appeared not once, but 3 times in his shrine and removed all Surendra's doubts. Yes. Surendra was liberal, generous, large-hearted by nature. He loved giving joy to others. He was outspoken and never afraid to speak the truth. He loved the master deeply, and the master too loved him dearly. Surendra was, as the master said, a half supplier of the master. He used to contribute lavishly for the food and bedding of devotees who would spend the night at Dakshineshwar. Sri Ramakrishna advised Surendra to practice kindness to living beings, service to devotees, and chant the name of God. He never asked him to renounce, he only asked him to renounce mentally. Surendra was rich, aristocratic, and extremely sensitive. In 1881, Sri Ramakrishna crushed Surendra's ego in his own home. There are 2 instances in his life. Surendra once bought an expensive garland for Sri Ramakrishna.
Thakur did not accept it and flung the garland in a corner. Surendra's pride was badly crushed. And then he realized that God cannot be bought with money or be possessed by a vain person. Tears kept flowing down Surendra's cheek when he experienced this. Seeing that Surendra had realized his mistake, Thakur then danced towards him and accepted the garland. Surendra's joy then knew no bounds. On another similar occasion too, Sri Ramakrishna again taught Surendra, but this time by first being indifferent to him and then later seeing Surendra shed tears of repentance, he blessed him, saying, "May the blissful mother make your life blissful." This really happened later. Sri Ramakrishna would often visit Surendra's home and also his garden house at Kakurgachi. His house was one of his parlors. In fact, it was Surendra's home that Swami Vivekananda first met Thakur in November 1881, and it was he who first took Swamiji to Dakshineshwar. Surendra was the one who got an oil painting made of Sri Ramakrishna depicting the harmony of religions. It was also he who got Thakur's Sri Ramakrishna photographed at Bengal Photographers, in which Sri Ramakrishna went into Samadhi while being photographed. We can understand how deep was the devotion of Surendra from the following incident. In September 1885, when Sri Ramakrishna was at Shamapukur, Surendra got permission from the master to perform the worship of Mother Durga in his house. This worship had been discontinued by his family after some mishaps. Surendra nevertheless decided to resume this worship with Sri Ramakrishna's permission. On that day, at the time of the Sandhi Puja, Sri Ramakrishna went into Samadhi for half an hour in his room at Shamapukur in the presence of his disciples. There he saw a luminous path open up to Surendra's house. He saw that due to Surendra's devotion, the mother was manifest in the image there and her third eye was emitting divine light. Surendra was sitting in the courtyard, weeping copiously, calling, "Mother, Mother." When Swami Vivekananda and the devotees went there at the behest of Sri Ramakrishna, the sight they saw was exactly as Thakur had described to them. It was Surendra who rented the house of Sri Ramakrishna at Kashipur and contributed to its expenses. Surendra once went to Kashipur with garlands for Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, surrounded by devotees, beckoned him and then took the garland from his neck and put it around Surendra and further blessed him, asking him to rub his feet. After Sri Ramakrishna passed away, when Surendra was meditating in his shrine, Sri Ramakrishna appeared to him and asked him to find a suitable place for all his young disciples who had left home in his name and were roaming about without a place to live in. That is when Surendra rented a house at Varanagar and also supplied all Thakur's monastic disciples with food and other necessities. Surendra died of dropsy in 1890 at the age of 40. When he was seriously ill, he offered rupees 500 to the disciples, which was later used to purchase the marble flooring of Sri Ramakrishna's shrine at Belur Math. Thank you. Pranam, sorry. Okay. Well done. I'm glad that we are reading the direct disciples of Sri Ramakrishna. Yes. Because, even though householders, how much of devotion they had. Fabulous. And how much of experiences, even spiritual experiences they had. Yes. Because if we had read direct disciples also, we will read.
But then they have renounced, they are doing it, Yes. but here they are doing the household duties, works, and at the same time they have devotion and having the experiences. This is a great thing. This is a Absolutely. blessing of Sri Ramakrishna, and this is a very great lesson, lesson for us. Yes. So, shall we begin with some introductory discussions now? जी Questions. question. So Nivedita, first today Nivedita has asked with the first, yes. My first question is there, what is Maya and what is ignorance? Why does ignorance happens? अच्छा देखो, I will give you a simple example. The rope is lying at a distance. You are looking at it and जी you say, what is this? I don't know what is this. This is ignorance. When you go close to it, you think it is a snake. Arey baap re, this is a snake. This is Maya. Okay. A simple example, huh? Now, when you take a thing, same, you can have a number of examples. From a distance, you are not able to recognize a person. When you close, you find this is this and this person. Though that person is a relative, but you think someone else. So thinking something is not knowing the thing is ignorance, and considering something as something else is Maya. Okay? This is a simple example. When you come to the word philosophy. Okay. So One. Please, wait. Not yet complete. Philosophically, the world is one with Brahman. Sarvam Khalvidam Brahma. All is Brahman. But we don't know this. This is ignorance. Everything. And when we, instead of that, what we see is this whole world. Men, women, children, house, building, good, bad, etc. This is Maya. Not knowing something is ignorance, and considering something as something else is Maya. Is that clear? Yes. Yes. One more. Once Ma Sharda is saying that I am myself is Maya. So what is the relevancy here? Because first is initially, actually, directly, he is what is she? She is Jagadamba, isn't it? Yes. But we are considering her as Sarda, a lady. So is this not Maya? No, that Maya is for us only, no? But she is telling that she herself is Maya. No, when she comes out down on the world, she is now acting as an ordinary woman. Now, she herself is Maya. That means that if you cannot recognize her, she can make whatever she likes. She can delude others also. And when you carefully think about this, herself is Maya, I will give you a homework. How is Maya, Holy Mother Maya herself? Just find out from her life. Okay. So many places Holy Mother appears something else. Actually, what she is, she does not appear something else. Why? Because she herself is Maya. महाराज जी समझ में नहीं आया है मैं जो समझा हूं वो ये है कि इग्नोरेंस जब है, जब हमने देखा कि दूर से कि ये रस्सी है या सांप है,
तो ये इग्नोरेंस है। जब पास में जाके देखा कि ये रस्सी है तो ये माया हो नहीं गई। नहीं 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 नहीं, हाँ दूर से देखा तो पता नहीं चला क्या है। हाँ क्या है? अब पास में देखा तो सांप दिखा, जी। हम्म, रस्सी नहीं दिखी। ओके। हम्म, हाँ हाँ तो वो इग्नोरेंस और माया। जी। पहला इग्नोरेंस हुआ और दूसरा हुआ माया हुआ। हम्म, पर महाराज जी, सांप दिखा पर हकीकत में वह रस्सी थी, तो अरे वो हाँ, क्या? थी तो रस्सी, दिखी तो सांप। हाँ, तो उसको सत्य कहेंगे ना। तो सत्य क्या कैसे कहेंगे, वो तो रस्सी है। हाँ, तो जब हमको वो पहले तो कुछ नहीं दिखा, बाद में हमको सांप दिखा, पर हकीकत में रस्सी। तो देन हाँ, तो व्हाट? हाँ हकीकत पता हाँ नहीं हाँ। चली। तो माया के कारण हकीकत पता नहीं चली। अच्छा। हाँ, हम्म, तो हकीकत को माया हम्म, ने ओवरलैप कर दिया। हाँ जी। दिलीप भाई, हकीकत ये है कि मैं तुम आप सब ब्रह्म है। हाँ हम्म, लेकिन माया ये है कि आप दिलीप भाई हो गए और मैं ब्रह्मेशानंद हो गया। ओके, ये माया है। और हम्म, अज्ञानता क्या है फिर, जो पहला सवाल था? अरे वो तो अज्ञान अभी चला गया, क्योंकि हम एक दूसरे को जानने लग गए। अच्छा, हम्म। ओके, राइट महाराज जी। जी। हमारा दूसरा प्रश्न है, इफ यू हाँ रियली वांट टू इफ यू रियली वांट टू नो हिम, मेडिटेट ऑन हिम इन सॉलिट्यूड, ऐसे यस। ठाकुर कहते हैं। हाउ टू मेडिटेट ऑन ठाकुर, ये आप अच्छे से बताइए। देखो, हाँ ठाकुर को ध्यान करना है तो शुरू में हम्म, उसका रूप का ध्यान करो। रूप का ध्यान कर सकते हो ना? जी जी हाँ जी। जी। हाँ, तो पहले रूप का ध्यान शुरू करो। हम्म, और तुम्हारे को तो सचमुच आ जाए, जिन्होंने दीक्षा ली है उनको ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जैसी गुरु ने हम्म, दीक्षा दी है उसके अनुसार पूरा वर्णन किया गया है, उसके अनुसार करना चाहिए। हम्म, तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है, लेकिन सभी हम्म, जनरल लोगों के लिए कर रहा हूँ। हम्म। और जो हाँ मैं हाँ। कह रहा हूँ, यदि वह आपके गुरु के दीक्षा के इंस्ट्रक्शंस के विरुद्ध होवे या अलग होवे तो नहीं करना। जी। हम्म, तो इसलिए पहली बात तो यह है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन वैलिड नहीं, करेक्ट नहीं है, क्योंकि तुमको गुरु के द्वारा हम्म, मेडिटेशन की टेक्निक दी गई है। हम्म, और जब जनरल क्वेश्चन पूछते हो तो वैसे इसके बारे में, दीक्षा के बारे में अलग अलग प्रकार के जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। हम्म, बड़ी डेफिनेट है, पहला है रूप ध्यान। हाँ हम्म, ठीक है, जी। जी। राम का रूप है, कृष्ण का रूप है, उसका विष्णु का रूप है, राम कृष्ण का रूप है, उसका ध्यान करना। अब उसके साथ दुख दूसरा आगे चलोगे बढ़ोगे तो उसके बाद होगा गुण ध्यान। गुण ध्यान। हाँ, करुणामय है, प्रसन्न है, दयामय है, उनमें शक्ति है, ये सब गुण ध्यान हो गया। हम्म, जी। रूप उसके ध्यान। तीसरा चलोगे आगे तो होगा स्वरूप ध्यान। हम्म, वह जी सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद प्रभु। रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। जी हम्म, जिसका भी ध्यान करते हैं, वह राम भी है तो वो भी परमात्मा ही है, और राम कृष्ण भी हैं, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। तो ये तीन स्वरूप हो गए, रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। स्वरूप ध्यान। हम्म, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अपना गुरु को नहीं प्राप्त नहीं हुआ है तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गुरु ध्यान से शुरू करके गुण ध्यान से लेकर स्वरूप ध्यान तक पहुंच सकता है। ठीक हुआ? अच्छा, अभी प्रश्न है कि ये जो रूप ध्यान आप शुरू कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ध्यान के साथ साथ जप भी करना चाहिए कि जप आखिरी में? देखो, हम्म, ऐसा है कि जब जब करोगे, रूप का हम्म, ध्यान जो है वह बिना जप के भी किया जा सकता है। हम्म,
लेकिन जब अगर जप करोगे तो जप के साथ ध्यान भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ। बिना जप के ध्यान किया जा सकता है, हाँ लेकिन बिना ध्यान के जप नहीं किया जा सकता। समझ में हाँ। आई बात कि नहीं समझ में आई? हाँ जी 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 महाराज। तो अच्छा। निवेदिता, हाँ, अब हाँ, निवेदिता, अभी तीसरा प्रश्न। हाँ ठहरो हाँ। ठहरो ठहरो तीसरा। ठहरो, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तुम्हारी हाँ, दीक्षा बोलिए। कितने, दीक्षा हुए कितने साल हुए? बहुत साल हो गए। 61 में 1961 में लिया था। हाँ, तो ये तुमको 60 साल करीब हो गए ना। हम्म। और 60 साल के बाद में ये प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं, हमारा बीच बीच में क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है। साहब, हम लोग ठीक रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं, इसलिए पूछा मैंने। अरे 60 साल के बाद, ये कैसी बात करते हो? हाँ, कब एक बार तो और मुश्किल हो गया था महाराज। ओ तीनों ने बोला भगवान, 7 साल के पहले आपने दीक्षा लिया था, तो मंत्र भी बहुत भूल गए होंगे जरूर, ऐसा हे बोल दिया था। भगवान, हे भगवान। ओहो। तो इसलिए अब बीच बीच चलो में तो तीसरा, साधु संग चलो आपसे पूछना पड़ेगा ही। हम्म। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इट इज इजी टू गेट रियल फेथ बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाउ टू गेट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुभूति। देखो ये पेज नंबर 97 से 98 के ऊपर पूरा वर्णन है, डिटेल, हाउ टू अच्छा। एक्सपीरियंस पूरा इत्यादि है, वहीं हम्म। पे पूरा लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा। हे भगवान, वहाँ पूरा के पूरा लिखा हुआ है, चौथा। तुम कैसे? हाँ। हाँ। अब है चौथा प्रश्न। हम्म, चौथा प्रश्न है, हाउ टू इंक्रीज अवर लॉन्गिंग फॉर गॉड। वो भी वहां पर पूरा लिखा है, पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो आ जाएगा। वो है कि देन संसार में जब तक एंजॉय करोगे संसार को, तब तक लॉन्गिंग नहीं आती। जब दुनिया सब झटके खाते हो, चांटे खाते हो, when you suffer, then come longing। जी। जब बच्चा रोता है तब माँ गोद में उठाती है, और बच्चा जब भूखा रहता है तब रोता है। पेट में भरा हुआ खेलता होता है तो माँ उसकी चिंता नहीं करती है। बोलने से नहीं होगा लॉन्गिंग लॉन्गिंग, सारा जीवन निकल गया, मजे से संसार का दुख सुख रह रहे हैं, तो क्यों होगा भगवान? भगवान कहेंगे ये अच्छा खेल रहा है। माँ भी देख रही है कि अपना काम कर रही है, खाना बना रही है, बच्चा मस्तिष्क में मस्ती में खेल रहा है, तो माँ क्यों जाके उसको उठाएगी? तो बोलने से नहीं होता, हाउ डू गेट लॉन्गिंग। अरे जीवन में प्रार्थना करो, भगवान है, भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसका थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए ना। ये जो जितने पूरे प्रश्न है ना, कि ये ऐसा है कि ऐसा लगता है कि तुमने इतने साल से कोई साधना कभी की नहीं, इसका सोचा भी नहीं साधना के बारे में। 60 साल के बाद में साधना के ये प्राइमरी क्वेश्चंस को पूछ रही हो? हे भगवान। अच्छा। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, इन स्पाइट ऑफ हैविंग जेलसी, हाउ ठाकुर पोर हिज ग्रेस टू मनमोहन। वो पूरा के उसका भी पूरा वर्णन है, पेज नंबर 99 से 100 में। और जेलसी होते हुए भी ठाकुर क्यों क्यों नहीं कृपा करेंगे? भगवान है, अवतार है, इतने बड़े संत हैं, वो क्या जेलसी को महत्व देंगे? और जेलसी के उसके पूरे परे परे जाते हैं, उसकी कभी चिंता नहीं करते हैं। वो बिना जेलसी, जेलसी हो या गुस्सा हो, लोग विरोधी हो, लेकिन तो भी कृपा करेंगे। तो ये तो संतों का महत्व, संतों का, अवतारों का स्वभाव है कि इस प्रकार की चीज होते हुए भी वे कृपा करते हैं।
हम्म। अब उसके बाद है मास्टर व्हाई ठाकुर इज टेलिंग दैट इट इज डिफिकल्ट टू डू ड्यूटी इन संसार। You are a sansari, you मतलब tell reply. संसार का It is, ड्यूटी निभाकर ठाकुर को बुलाना ये डिफिकल्ट है ना। हाँ हाँ, तो अब मेरे से क्यों पूछते हो? तुम संसारी हो, यू आर ए संसारी, यू आंसर द क्वेश्चन। हम लोग तो संसारी नहीं है, हम तो भक्त है। तुम तो भक्त हो, क्यों तुम फिर क्यों संसार की चिंता करते हो? ठीक है। यहाँ पे तो ठाकुर ने अच्छा। बोला है जो संसारी है उसको दिक्कत होती है ना, यही पूछा ना। जी। हम्म। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि तुम संसारी, तुम बताओ तुम्हारा क्या क्या तुम कैसे आंसर उसका उत्तर दोगे। हम तो संसारी हैं, नहीं है, हमें तो बाहर है, हमको दिक्कत नहीं है। हम्म। और तुम ये बताओ तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं था, फिर तुम क्यों प्रश्न किया उसको? नहीं, हम तो ठाकुर के हाथ पकड़कर संसार करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आएगा और तुमको डिफिकल्टी उसको तो करना ही पड़ेगा। तो तुमको प्रॉब्लम है, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये तुम्हारे लिए प्रश्न नहीं है, छोड़ो। अच्छा। अच्छा, मास्टर इज गिविंग एश्योरेंस टू गृहस्थ भक्त फॉर मोक्ष, सो मोक्ष इज पॉसिबल फॉर गृहस्थ ऑल्सो, प्लीज एक्सप्लेन। यस यस। अगर व्याकुलता होगी तो हाँ। मोक्ष गृहस्थ को भी मिल जाएगा। जी। हम्म। प्रश्न ये है कि डू यू नो, क्या मोक्ष चाहते हो? हम्म। क्या कोई नहीं चाहता मोक्ष को? सोचा बात मत करो। ये मोक्ष है ना, ये किताब हम्म। लिखने में भी, हाथ से लिखने में भी दिक्कत होगी, इतना कठिन है लिखना। वो हम्म। क्ष क्ष कैसे लिखना बड़ा मुश्किल है। मन में जाने की बात तो सोचो। कोई भी दिन भर में, साल भर में कितनी बार मोक्ष की बात सोची है, सोचो तो। मोक्ष के लिए रोना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, बिना उसके मोक्ष नहीं होता। तो मोक्ष की बात है ना, ये फिलोसफी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में मोक्ष की बात नहीं हो सकती। रो, हम्म। रो कभी कभी रो। नहीं, मैं कभी खाली पूछ रही हूँ कि गृहस्थ लोगों को भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा तो ठाकुर ने एश्योर किया है। अगर अगर कोई कोई रोवे, हम्म। 24 घंटे रोना शुरू हो सकते हो? कभी किया है एक बार 5 मिनट भी भगवान के लिए रोए हो क्या? और नहीं रोएगा ना तो सन्यासी को भी नहीं होगा। हाँ। ये तो, अरे ये तो फंडामेंटल चीजें हैं, तो प्रश्न क्या किया है ये? गृहस्थ को क्यों नहीं होगा, लेकिन हाँ। सन्यासी को भी नहीं होता, क्योंकि सन्यासी भी नहीं रोता है। अच्छी व्याकुलता आई, संसार को त्याग दिया, लेकिन फिर फंस गया, वो व्याकुलता नहीं आई। और अभी हम्म। तुमने ये बात उठाई है तो मैं पर्सनल बात बता दूं। शुरू हम्म। शुरू में बेलूर मठ में गया था, कुछ 4-6 महीने था, एक ब्रह्मचारी था, खूब व्याकुलता हम्म। आती तो रोता था। हम्म। तो जानते हो कितने दिन, कितनी देर रो पाता था? हम्म। 15-20 मिनट के बाद में रोना बंद हो जाता था अपने आप। रोज रोता था लेकिन भगवान के लिए, लेकिन वो 15 मिनट। हाँ। ठाकुर ने क्या कहा है? 1-2 दिन रो सको एक दिन एक तो रात। भगवान, तब 1 दिन और 1 रात। तो ये इतना आसान है क्या हम्म। बाबा? ऐसा है कि आप। हाउस होल्डर हुआ तो भी व्याकुलता हाउस होल्डर और गृहस्थ दोनों को हो सकती है बाबा। हम्म। व्याकुलता होवे, रो, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म। चलो उसके आगे बाद का फिर। प्रश्न है, ठाकुर once said that if he goes to Puri, his body will not last. But how did he go to Mahesh to see Lord Jagannath? But he told of Puri. He did not told of Mahesh. हाँ।
उन्होंने जगन्नाथ की तो बात नहीं की, पुरी की बात कही है, और महेश चले गए हैं, तो दोनों को कंफ्यूज क्यों करते हो? नहीं, पुरी में बात किया है कि पुरी में जगन्नाथ को अगर देखेंगे तो उनका बॉडी जगन्नाथ में मिक्स हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं हम्म कहा कि महेश में जगन्नाथ को देखूंगा तो मेरा शरीर नहीं रहेगा। हम्म तुम्हारे प्रश्न में जगन्नाथ है ही नहीं। जगन्नाथ है महाराज, जगन्नाथ दिखा नहीं है। है, तुम्हारे कहते ही गोज टू हाँ, पुरी, हिज बॉडी विल नॉट, जगन्नाथ है। और क्या लिखा टू सी तुमने? प्रश्न क्या है? जगन्नाथ। तुम्हारा प्रश्न क्या है, पढ़ो तो। Thakur once said that if he goes to Puri, his body will not last. But how did he go to Mahesh to see Lord Jagannath? Yes. हाँ, तो पहले तुमने पुरी की बात कही ना, हम्म तो पुरी में भी जगन्नाथ की बात नहीं कही। नहीं, पुरी में तो सबको मालूम है, इसलिए मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, ऐसा है कि कथामृत में केवल तो लिखा है। जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ की बात कही। जी। अच्छा, दूसरी बात महेश की बात कही, तो महेश में उन्होंने जगन्नाथ को देखा कि नहीं देखा? ये तो नहीं बोला देखा, तुम्हारे प्रश्न में। कैसे कहा देखा। तुम्हारे प्रश्न में? क्या मालूम देखा कि नहीं देखा? महेश गए। हे भगवान। चलो, 9वां प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ में भैरवी। मेरा प्रश्न ये था कि ये वही भैरवी है जो नहीं ठाकुर नहीं की गुरु नहीं, थी। कोई दूसरी नहीं, बात, दूसरी बात। ये वाला। अच्छा, लास्ट है मेरा, हाउ व्हाई इट इज सेड द सीड ऑफ मेलन इज बिगर देन द फ्रूट। वो क्या प्रॉवर्ब है क्या? नहीं नहीं, ऐसा है कि ये जो बीज होता है, बीज से बड़ा फल निकलता है ना। हाँ हाँ, ये से ओके। जो कारण ओके, है, बस। जो कारण है उससे कार्य कितना महान निकल आता है, इसलिए कहते हैं। कौन है भाई? जी, हो गया? हो गया, हो गया महाराज। एक मिनट ठहरो। गुड बिगनिंग। 10 सवाल पूछ लिए। I know, good. बट निवेदिता, हाँ जी महाराज। हाँ, तुम्हारे को बहुत कम मार्क्स मिलेंगे इस बार। और तुमको मैंने क्यों बता महाराज? दिया, तुमने मेरे को बाद तुमको बता ही दिया कि कैसे कैसे प्रश्न किए तुमने। कुंडू कुंडू, चलो कुंडू। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ, Maharaj, page 97, Yes. at the beginning of his spiritual quest, Sri Ramakrishna told Manmohan, if you sincerely want to know the real nature of God, meditate on Him in solitude, have patience, surrender yourself to Him, and pray. When the right time comes, you will see Him. Yes. Now, my question is, without having an initiation, how can this be practiced? Like, is it possible to practice this without initiation? He never told about him to take initiation or something. so you in our whole literature you don't find that without initiation it cannot be done. I did not know. Where is it told? Like Tell me, normally where is during it told? initiation, we No, are, during initiation there is a different thing. Maharaj. But in our literature, etc., everywhere, nowhere you find that without initiation nothing can happen. Nowhere it is found. Suppose, now remember, if even if your saying is correct, now I suppose someone starts taking name of Thakur without initiation. Ram Krishna, he goes on doing for years, he goes on doing. A time will come when if it is necessary, someone will give initiation also. It will come automatically because he has done his part.
Now, first, second point. Why given importance to initiation? For realization, two things are necessary. First is grace of Guru, grace of God, and second is Diksha and self-effort. And suppose someone has done tremendous self-effort, grace of God will automatically come in a moment and everything will be all right. Okay. Now he need not go anywhere else. If he is really sincere and continuously does it, grace of God will come in the form of whatever form it will come. You are giving importance to initiation. But, don't give so much, Arey, kya hua, initiation without nothing will happen, nothing will happen. Let him do your effort. Your effort you go on doing. Initiation is not in your hand, it is in your God's hand. At right time it will come. But don't make it too much of a hawa, too much of importance to that. Is that all right? It is So a strange, that means some people have this strange idea. Nothing will go. Initiation chhada hobe na. Initiation er parer ki hoy chhe? Kichu hoy chhe? Ghoda dim hoy chhe. তোমার ইনিশিয়েশন হয়ে গেছে কিন্তু কিছু হয়েছে কি কিছু হয়নি তবে मतलब महाराज ये चार जो कंडीशन बोले हैं ठाकुर, ये चार इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब ये से शुरू करना है। क्या बोला तुमसे, कौन सी चार कंडीशन? इसमें बोला है कि मेडिटेट ऑन हिम, हैव पेशेंस, सरेंडर योरसेल्फ टू हिम एंड प्रे। बस ठीक है, वैसे कह रहे हैं ये चार चीजों से शुरू होगा। हाँ, सदा सदा सर्वदा भगवान नाम गुणगान कुने नित्य नित्य करवे, एकांतवास करके साधु संग करवे, ईश्वर एक मन कैसे लगेगा, ये ना फर्स्ट क्वेश्चन का। यस महाराज। So there also there is no question of initiation, what you call initiation in the present way. This is too much of importance to too much हमारी इमिडिएशन हो गए थे, हमारी इनिशिएशन हो गए थे, तारपरे किछु करबे ना, এই তো হচ্ছে। ইনিশিয়েশন হয়ে গেছে আর ওকে, আরে ওটা করে যাচ্ছে, কিছু ইনিশিয়েশন হবেই না, কিছু হবে না। আর আপনার কি হয়েছে? আপনার তো ইনিশিয়েশন হলে কিছু হয়েছে কি? যেমন আছে তেমনি আছে। What is this? ठीक महाराज जी हम महाराज जी हम ये समझते हैं कि यदि इनिशिएशन हो गया है ना 25% they have reached towards the God. अरे कितना परसेंट? 25. अच्छा, what about 75%? हाँ 75% हमको मेहनत करना है। वो तो करना पड़ेगा। वो तो बात करते हैं ना। अरे हम तो ये बोल सकते हैं कि कोई लोग तो ये भी बोलेंगे कि 75 इनिशिएशन में 75% हो गया है, यहाँ तक बोलने वाले हैं लोग। हाँ महाराज, यस, लोग बोलते हैं ऐसे। लेकिन 25% में तो 5% नहीं, 2% नहीं करेंगे। इनिशिएशन हो गए थे, छेले बेलाई हो गए थे, सारा जीवन बेरिए गए थे, किंतु और कुछ है नहीं। बचपन में इनिशिएशन हो गया है मेरा तो, लेकिन सारा जीवन मैंने कुछ तपस्या नहीं की। इसलिए बाबा इनिशिएशन को इम्पोर्टेंस हम तो बिल्कुल देते ही नहीं। जी हमने तो आज तक नहीं सुना। सच्ची बात है, एक्चुअली स्पीकिंग, ये आपकी नाम अपने सुबीर की नाम की सुबीर क्या नाम? कुंडू। It's the first time. This is the first time in my life I am listening for the first time so much importance about initiation. ठीक महाराज। I have got it. Because routinely we got it.
Yes. We never bothered about its importance. We went on Yes, doing sir. our job. And Mm. in due course it came. जी Yes. In young age it came. Mm. First. Second question. Next question, Maharaj. Page 98. Sri Ramakrishna said, yearning for God does not come until and unless a person has satisfied his cravings for mundane objects. I find that I am in this state of enjoying the mundane things. Can sadhana take place in this state? ये तो मेरा बेसिक डाउट आ गया महाराज. व्हाट इज आवर होप? कैन वी सर्व गॉड एंड मैमन टुगेदर? No. Go on doing what to do. In 90% cases. But at one stage, real yearning must come. And unfortunately, because you have raised the question, I have some experience of this. At one stage, I had real yearning. I used to intensely weep. अभी just now our first question is the निवेदिता के question में मैंने बताया ना. हाँ महाराज. हाँ, तो बेलूर मठ गया था, ब्रह्मचारी था, तो मैं मंदिर में ध्यान करता था, मेरे को खूब रोना आता था. That, but little, but not much. It is unfortunate, most unfortunate. तो हमें तो संसार जो है ना 80% हमारे अंदर ठुका हुआ है. So to talk of yearning, ठाकुर तो बोला yearning यानी रो, can you weep for God? ठाकुर तो main message यही है. It is so difficult. So difficult. हो गया? Page 103 Maharaj. The master takes Manmohan to task because he became angry hearing someone criticizing the master. What one should do when his guru is criticized by others? You go away from that place. Leave that place. You leave that place. Or if you cannot, you are in such a situation, disregarded, what else you can do? Okay. ठीक महाराज. महाराज नहीं समझा, फिर से बोली. अगर कोई अपने गुरु को क्रिटिसाइज करेगा तो क्या करना है? मनमोहन क्रोधी हो गए थे. हाँ? Don't get angry, get away from that place. नहीं महाराज जी, आपने बताया बराबर है, पर हमारा ये सोच है कि हमारे गुरु को कोई क्रिटिसाइज करे, कोई बोले, तो हमने उसको प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए कि तुम गलत हो जनाब. वो तो एंग्री हो गया ना. हाँ, तो वो तो जब कोरल होगा थोड़ा एंग्री तो होंगे, परंतु वी हैव टू प्रोटेस्ट. आप देखो, करने की कोशिश करो. हाँ. प्रश्न ये है कि वो क्रिटिसाइज करने ही वाला है. अरे दिलीप भाई, क्या तुम किधर रामकृष्ण आश्रम जाते हो, फालतू बातें हैं, सभी ये करे हैं. अब क्या करोगे आप, बोलो. नहीं, दिस अ डिफरेंस थिंग. परंतु कोई हमारे गुरु को कोई ये कि ब्रह्मेश्वरानंद जी क्या तुम पकड़ के बैठो, ये वो, तो हम तो थोड़े सुन सकते हैं. तो महाराज ठाकुर ने तो दो बातें बताया है. एक बार स्वामी योगानंद चुप करके बैठे थे, दूसरा बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे ठाकुर का. ठाकुर ने उनको बहुत डांटा, बोला तुम कुछ अपने गुरु के बारे में इतना निंदा कर, तुम क्यों नहीं उसका प्रोटेस्ट किया. और एक बार विज्ञानंद जी जो इसमें बोट में जा रहे थे, किसी ने ठाकुर को क्रिटिसाइज किया, तो वो नाव से निरंजनानंद उनको तो बहुत गुस्सा किया ठाकुर ने कि तुम क्रोध से पागल हो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे. दोनों ही ठाकुर ने बताया. अरे यानी एक बहुत गुस्सा हो गया तो ठाकुर ने पसंद नहीं किया.
हाँ और एक हाँ बिल्कुल हाँ प्रोटेस्ट नहीं किया, पसंद चुप नहीं हो गया। किया। हाँ हाँ, हाँ अगर तुम होगे ना, जी तो तुमको हाँ ठाकुर तीसरी बात बताएंगे। हाँ कौन सी तीसरी ठाकुर बात? तुम्हारे तुम्हारे टेम्परामेंट के अनुसार ठाकुर दूसरी बात बताएंगे तुमको। अच्छा 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 अच्छा, दैट इज राइट। जी यानी Yes. एक Yes. योगानंद तो माइल्ड पड़े रहे, चुपचाप सुने रहे। Yes. तो ठाकुर ने कहा कि तुमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, और दूसरे ने हम्म प्रोटेस्ट किया, तुमने कहा अरे क्यों प्रोटेस्ट किया। हम्म इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परामेंट। हमारे सामने हो गए ना, तो वो हम्म निवेदिता को देख के ठाकुर और कुछ उत्तर देंगे। There हम्म are various ways of meeting with these वेज ऑफ entities. डूइंग, हाँ Yes. करेक्ट। Yes. ओके जी। बट महाराज जी, ये तो बराबर आपने तीनों बात बता दी। मेरा ये कहना है कि एक जनरल केस में हमने क्या बात करना चाहिए, वहां से उठ के चले जाए या उसको थोड़ा समझाना चाहिए, भैया तू गलत। अरे वो समझेगा क्या? अगर समझने वाला हो तो समझा देना। ओके हाँ, लेकिन वो दुष्ट आदमी हो तो नहीं समझा सकोगे। जी तो देखो हुआ ना, एक ही पॉइंट का दो आंसर हो गए ना। हाँ, तो इसके ओके मतलब हमें व्यवहार इस हिसाब से करना चाहिए कि हाँ, जैसे सिचुएशन है। डिपेंड जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार व्यवहार करो। राइट राइट जी महाराज, ठीक करेक्ट महाराज। जी जी देन फोर्थ क्वेश्चन महाराज, पेज 105. जी Manmohan wrote to his wife, हम्म, "Don't misuse a single penny, otherwise we shall not be able to serve the master properly. yes, We now need a lot of money for his maintenance." How can we be so identified with God without having a direct contact like he had? Like here, he is considering Thakur as his family member. उसने तो ठाकुर देखो को भाई, देखा था, हमने तो देखा नहीं। it all depends upon your mind. हाँ देखो, his situation was different, our situation is different. yes, He was always used to go too close to Thakur. He was loving Thakur intensely. That is why he considered Thakur as his own. We are away. If you have got that feeling, then you do it. You don't spend the money. Otherwise, you have to do in a different way. So he depends upon the whole, depends upon individual mind. अच्छा महाराज, अच्छा महाराज। तो we have to tune our mind like that महाराज, ऐसे मतलब। Go accordingly, you know. Then question 5 महाराज, page 112. It is said, when God holds a person, his sensitive ego is crushed and he becomes humble. He does not enjoy mundane things and his mind dwells in God. He feels an irresistible attraction for God and holy company. Now, we also sometimes feel these indications, but how to make it intense and permanent? You see, we get it occasionally, not every day. Sometimes we get, sometimes after 5 days, sometimes after 2 days. हाँ Now, for that, make a routine to हम्म go to solitude off and on. Make a हम्म fixed routine first of all, so that the हम्म mind will get adjusted to this. हम्म Just now, the mind is working in the world 80%, and so suddenly some desire comes from world for thinking of God, etc. No, हम्म let every week you go once a week or twice a week or for half an हम्म hour every day, whatever it is. Fixed time you spend in solitude for God. Fixed हम्म time for that bhava. Gradually, that bhava must be increased. हम्म Then this question will not arise. ठीक महाराज, ठीक, ओके। Maharaj, this क्वेश्चन, solitude can be at temple also. Temple, yes. Solitude, depending upon a place we are not disturbed.
A solitude can happen in your room also. Chalo. Now, next question, Maharaj. Surendranath received God's grace mostly by spending money for the God and devotees. What is the role of donation in spiritual progress? You see, by donation, I just put it something like this. In the mind, the brain, our mind has some space, na? In mind, there is 50% of the mind is filled with desire for money. Ah. Then 25% for wife. Then 10% for name and fame. And remaining 5% for God. Now, if you reduce money, go on giving money in donation, the space for money will become less and space for my God will become more. Okay, Maharaj. I will just tell you a simple calculation करके मैंने बताया संसार में हमारा मन जो है वो पैसे से इतना भरा हुआ है तो पैसे को थोड़ा कम करो ना भाई तो पैसे मन भी जो है ना वो पैसा उसमें जगह कम करेगा so donation reduces our desire for money and makes more space for God. ऐसे महाराज जैसे हाँ बोलो 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 हाँ जैसे महाराज इवन गीता में भी बोला है दान मतलब यज्ञों में दान एक बहुत बड़ी चीज होती है हाँ यज्ञ it is a practice of unselfishness. हाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए practice of unselfishness, practice of non-attachment to money. हाँ ये साइकोलॉजिकल वो होते हैं फ्रीली देना you become more liberal, more less dependent on man, considering other people your own. Like that, one little dhan has got so many virtues. Unselfishness, liberalness, considering others as yourself, you become more broad-minded, etc. That is why दान is given such a great importance. ठीक महाराज महाराज जी ये दान के साथ एक नाम जब जुड़ जाता है तो ये दान की कीमत खत्म हो जाएगी दान के साथ नाम जुड़ जाता है अरे बिना बिना अरे दिलीप भाई बिल्कुल ठीक बात कही तुमने ये बिना 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 नाम जब के बिना नाम के दान होता है क्या कलयुग में जो दान होता है ना वो नाम के साथ ही होता है तो उसमें मुझे क्या हुआ लग रहा था महाराज जैसे क्या हुआ सुनो उसमें जब आप दान देते हो नाम के लिए तो जितनी स्पेस दिमाग में स्पेस जो थी वो खाली हुई थी दान के बदले उसके जगह नाम आ गया भगवान के लिए जगह नहीं बनी हाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना कितना परसेंट जगह किसके लिए 50% है तो दान तुमने दिया तो 40% हुआ वो लेकिन जो 10% जो बचा उसमें 20% हुआ नाम आ गया तो दिमाग में जो जगह है वो तो बल्कि कम हो गई बड़ी थोड़ी है उससे फायदा नहीं हुआ नुकसान चलो मतलब हम जैसे महाराज गृहस्थ के लिए दान सबसे एक हिसाब से सबसे सहज उपाय है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ अटैचमेंट ये सब कम करने की ट्रू लेकिन उसके साथ में अगर भगवान को नहीं जोड़ोगे ना तो ईगो जा रहे हाँ महाराज ठीक महाराज प्रणाम महाराज जी मर गया चलो दिलीप भाई जी हाँ प्रणाम महाराज जी प्रणाम महाराज जी पहला क्वेश्चन
पेज नंबर 93 ओपनिंग है. Bliss is the source of existence, and again, it is also the goal of all human endeavors. So my question is, what is the meaning of existence and the goal for the bliss? एग्जिस्टेंस यानी जीवन. इसको हिंदी में करेंगे. हिंदी अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ रहा था, ये इसका हिंदी नहीं है, लेकिन हाँ. तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को यदि हिंदी किया जाए ना तो बिल्कुल सब के सब सरल हो जाएंगे. जी. आनंद जो है, सुख या आनंद है, वो जीवन का आधार है. ये हो उसका अर्थ है. एग्जिस्टेंस का अर्थ है जीवन. नहीं, वो आनंद मीन्स, यहाँ आनंद का मीनिंग होगा ब्लिस. हाँ, ब्लिस जो है, हाँ, वो आनंद. आनंद जीवन का आधार है. जीवन में आनंद नहीं होगा तो कैसे रहोगे? महाराज अस्तित्व हो सकता है, अस्तित्व. महाराज जी, फिर ये डिटैचमेंट कैसे होगा? यदि आनंद आया तो फिर डिटैचमेंट तो खत्म हो जाएगा. तो और नहीं, डिटैचमेंट होगा तो गॉड के लिए क्रेविंग कैसे होगी? नहीं, इसलिए तो जीवन से आनंद डिटैचमेंट करना इतना आसान नहीं है. हाँ, वो उसमें भगवान के प्रति अटैचमेंट भी होता है ना, तब वो आनंद आता, तब छूटता है. Swamiji, can we translate Anand as freedom? Joy and freedom. आनंद यहाँ पे जो है वो क्या कहा है? इट इज अटैचमेंट. क्या है वो? Attachment. This is the source of existence, and again it is also the goal for human. नहीं, bliss बताया है. नहीं, ब्लिस जो है, ब्लिस यानी आनंद है, हमारे एग्जिस्टेंस है, हमारे जीवन का आधार है. और दूसरी लाइन में क्या कहा? And again it is also the goal of all human endeavors. और वो जीवन, आनंद जो है वो जीवन का लक्ष्य भी है. Yes. आनंद जीवन का आधार भी है और जीवन आनंद का चरम लक्ष्य भी है. Yes. संसार में लोग जो रह रहे हैं बिना आनंद के रहते हैं क्या भी दिलीप भाई? नहीं, पर आनंद के बिना तो चलेगा नहीं. नहीं, पर ये सब कुछ छोड़ के जो लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी तो आनंद पाते हैं, इसीलिए तो छोड़ के लगे हुए हैं, नहीं तो क्या इतनी मेहनत करेंगे क्या? नहीं, मेरा सिर्फ महाराज जी यहाँ पे सवाल बिल्कुल उल्टा है. हम जो फैमिली में रहते हैं और आनंद की बात करते हैं, और हमें जो यहाँ पे बताया जा रहा है और हम जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो दोनों आनंद में फर्क है. हाँ, फर्क है. Yes, it is. Bliss is not that pleasure that we are having. नहीं, दोनों में फर्क है. Yes, that is. बस दोनों में फर्क है. Okay. Now my second question. Bound souls do not like to hear about God. महाराज जी महाराज, हमारा दिलीप भाई पढ़ो, चलो आगे चलो. हाँ, दिलीप भाई. Bound souls do not like to hear about God. Is Atman and soul are one? How soul is? नहीं, सोल का मतलब यहाँ पर सोल का अर्थ केवल जीव है, आत्मा नहीं है. Okay. बाउंड पीपल. हाँ, सोल के बदले पढ़ो ना बाउंड पीपल. bound people do not like to hear about God. Right. His Atman is different. Okay. Now number 3. Spiritual discipline of the Brahma. Maharaj, my question is, what is the spiritual discipline, number 1, and how it differs from the spiritual discipline of the Ramakrishna Math? वो क्या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो अलग अलग प्रकार, रामकृष्ण मिशन के अलग अलग डिसिप्लिन है, और तुम्हारा जैनिज्म का दूसरा डिसिप्लिन है, बुद्धिज्म का दूसरा डिसिप्लिन है. वो साधना की पद्धति अलग अलग है सबकी. Okay. And there are different ways to reach to the one goal. हाँ. Right. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये. जी. Now, next question. Since Manmohan was an ardent devotee of Keshav Chandra and the Brahmo Samaj, he was averse
to image worship. Sri Ramakrishna understood Manmohan's attitude and said to him, as an imitation custard, apple reminds one of the real fruit. So the divine image enkindles the presence of God. He is also powerful. It is possible for him to manifest in anything. Maharaji, Brahma Samaj was against Murti Puja, while here Ramakrishna is dualist. Murti Puja, if so, then who is Advait? अद्वैत अद्वैत यहाँ के क्यों लाते हो? यहाँ पे वो उसमें क्या कहते हैं, ब्राह्मण समाज में भी अद्वैत नहीं है और मूर्ति पूजा में भी अद्वैत नहीं है. अद्वैत को मत लाओ यहाँ पे. अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाए. ओके जी. नेक्स्ट, दिस वर्ल्ड इज अ फ्रेमवर्क ऑफ इल्यूजन. दिस वर्ल्ड अगेन इज अ मेंशन ऑफ मिथ, but one should know how to get joy here. Maharaj ji, please explain how to get joy here. देखो, ये जो संसार है यहाँ कहते हैं उसको बंगाली में ना, ये है धोखा टट्टी. ये संसार जो है ये धोखे का घर है. अच्छा, यहाँ पे धोखा खाओगे संसार में खाते हैं ना, और यही संसार है वह आनंद की कुटिया हो जाएगा. संसार में मत पकड़ो, संसार को मत पकड़ो, भगवान का नाम लो, गाना गाओ, सुबह सुबह उठ के और अपना हारमोनियम लेके और घंटी बजा के गाना गाओ तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा गाने से? आएगा. जी महाराज जी. और रोज जो है, रोज सुबह मिठाई है भगवान को चढ़ा के और खुद खाओ. तो आनंद आया कि नहीं आया? हाँ, वैष्णव लोग यही करते हैं. तो ये वैष्णव लोग क्या करते हैं, सब कुछ वो गाना भी गाते हैं और मिठाई भी चढ़ाते हैं. सब बड़े मजे से आनंद है सबके सब, जितना चाहो उतना आनंद. अच्छा, यानी ईश्वर का ज्ञान करते हुए रहो, संसार में तो आनंद है. हाँ, वही तो बात है. भगवान को पकड़ के रहो तो आनंद ही आनंद है. Next. Yes, Maharaj. Next question. But if you can somehow keep your mind in God, all obstacles will go away. There is tremendous power in the name of God. Maharaj, here all obstacles will go away. Means all the worldly or spiritual obstacles only. Mostly spiritual. Yes. वर्ल्डली ऑब्स्टिकल जो है ना, जो भक्त है उनके जीवन में वर्ल्डली ऑब्स्टिकल ज्यादा आते हैं. हाँ. ये स्पिरिचुअल ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं. जितने भक्तों को देखोगे, उनकी जीवनी को देखोगे, कितना दुख उनको सहन करना पड़ा. जी. अच्छा महाराज जी, यदि हम यहाँ पे इस प्रकार से लेते हैं दिमाग में, तकलीफें आ रही है, स्पिरिचुअल ऑब्स्टिकल्स आर कमिंग, हम ईश्वर का नाम लेते हैं और जो होता है, जो ईश्वर तेरे को मंजूर है वो तू कर, हमें मंजूर. हाँ, ऐसे भी भक्त है कि यदि दुख आता है जीवन में तो बहुत खुश होते हैं. हाँ जी. कि इससे भगवान खुश हो रहे हैं, भगवान की कृपा मुझसे पड़ रही है. हाँ. Swamiji, satsang is like an anesthetic, nothing. That is, we are not asking any answer from you, please. Sorry. Next question. He was proud of his devotion. Maharaj ji, what this sentence means? It is worldly devotion or religious devotion? No, ये तो हो गया. Page number 99. He was proud of his devotion. Maharaj ji, what this sentence means? It is worldly devotion or religious devotion? If it what is worldly devotion? बताइए आप. यहाँ तो कहीं आया नहीं है वर्ल्डली डिवोशन, रिलीजियस डिवोशन. दो तरह के डिवोशन आए हैं क्या? कहीं किताब में तो नहीं आया. नहीं, किताब में नहीं. मेरा सवाल ये है, एक मिनट आगे महाराज जी. इट इज रिलीजियस डिवोशन, देन हाउ कैन बी फॉर लॉन्ग टाइम मनमोहन मित्रा रिमेन अवे फ्रॉम दक्षिणेश्वर एंड रामकृष्ण? नहीं, वो अपने डिवोशन में रहा,
ठीक है, मस्ती में रहा, क्या जरूरी है क्या वो दक्षिणा से जो आया ठाकुर के पास जाए? अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, तो महाराज जी ये इसको कंटिन्यूएशन, ये ऊपर का सवाल है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज डिवोशन, तो ये प्राउड ऑफ हिज डिवोशन तो ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल डिवोशन के लिए ही तो वो प्राउड हाँ था। हाँ हाँ, वो एक एक अभी तक उसकी वो स्थिति नहीं आई कि वो श्री रामकृष्ण के पास जाए। हाँ उनको ऐसा लगा नहीं कि किसी मुझे आवश्यकता है श्री रामकृष्ण के पास जाने की, हम्म। इसलिए वो नहीं गया, उसको ऐसा नहीं लगा। ये महाराज जी यहाँ तो सवाल का जवाब बिल्कुल आया। यदि कोई व्यक्ति घर पे बैठ के ईश्वर पूजा करता है और ईश्वर ध्यान में मग्न रहता है, तो ये आवश्यक नहीं है हमें कि हमें मंदिर जाना है या आश्रम जाना है या गुरु के पास जाना है। कभी कभी जब ऐसी स्थिति आएगी जब तुमको लगेगा हाँ कि मैं आगे आगे प्रगति नहीं कर रहा हूँ, मेरी हाँ बाधा आई है साधना में, जब वो उसको भगवान गुरु हाँ की इच्छा होगी। राइट, जी 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 महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट टच एन एंग्री पर्सन एंड आई कांट बियर हिज प्रेजेंस। महाराज जी, व्हाई रामकृष्ण कैन नॉट बियर द प्रेजेंस ऑफ एंगर? बिकॉज एंगर, जो व्यक्ति एंग्री है हाँ उसका सारा शरीर जो है वो क्रोध से भरा हुआ है। उस हाँ हाँ शरीर को, वो शरीर जो है, और दूसरा शरीर जो शांत है, आनंदमय है, भगवान का नाम ले रहा है, उन हाँ दोनों के शरीर में फर्क नहीं होगा क्या? हाँ वो मन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, जी इसलिए। ओके, आई कैन जी। नेक्स्ट, महाराज जी, मनमोहन मित्रा's mother Syama Sundari was a devotee of Sri Ramakrishna who permitted her son to go to master. जी महाराज जी, ये मेरा सवाल, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी फर्क है कि श्यामा सुंदरी वॉज द डिवोटी ऑफ विच गॉड हाँ? और रामकृष्ण? श्री रामकृष्ण भगवान की भक्त थी, अच्छा हाँ और यहाँ सर, कहीं नहीं लगा है कौन से भगवान की भक्त थी, हाँ लेकिन वो जानती थी कि श्री रामकृष्ण बहुत महान संत हैं, अच्छा इसलिए वो अपने मित्र को, अपने सन को, पुत्र को बोलती थी कि तुम जा गए क्यों नहीं, जाओ वहां पर। ओके जी राइट। When communication is aroused, he broods, laments, and cries in solitude. At that point, some become desperate and try to take their lives. Others go to a holy person and surrender themselves to him or her. Surendranath Mitra tried both. Maharaji, my question is, unless God bless, it is not possible to go to holy person. Am I correct? And how to get blessings of God when he is bad or unsavory person? देखो भाई, हम्म, भगवान की, गॉड की जो कृपा कृपा होगी ना, हाँ उसको उसको आप खरीद नहीं सकते कि मैंने 1,000 जप किया है, भगवान ने कृपा करनी चाहिए, जी मैंने 1,00,000 जप किया है, भगवान की कृपा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, नो कंडीशन फॉर कृपा। ओ, ओ, आप जी अपना काम किए जाइए, समय पे कृपा हो जाएगी। हम्म। तो प्रश्न का उत्तर हुआ। जी होगा, बिल्कुल हो गया। लास्ट क्वेश्चन, माय सन, गॉड अलोन इज ट्रू एंड एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। These words touched Surendranath's heart and gave him strength to rouse himself from his mental hell. Is Surendranath Mitra was spiritually high that these words changed his life? महाराज जी, जनरल केस में तो ये पॉसिबल होता नहीं, बट ही वाज स्पिरिचुअली बोर्न। क्या बोला है कि वो क्या जप करता रहा था तो क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो फिर से, इसको समझाओ। This, my son, God alone is true and everything else is false. किसने किसने बोला ये? हाँ, ये महाराज जी, भैरवी, भैरवी, हाँ भैरवी ने, यस भैरवी ने बोला हाँ, जी।
सो ये वर्ड्स इनको टच कर गए. सो आई मीन टू से कि जनरल केसेस के अंदर हम साधक लोग हैं या संसारिक लोग हैं, इसको ऐसे वर्ड्स तो रोज सब बोलते हैं बड़े संत लोग, पर वो टच नहीं करते. इनको टच किया. तो मेरा पूछना सिर्फ यही था कि क्या स्पिरिचुअली ही वाज बोर्न, दैट्स व्हाई इट इज इमीडिएटली. Spiritually he was awakened. यस, ओके, स्पिरिचुअली अवेकन. आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत हो गया था, इसलिए भैरव की बात उसको लग गई. राइट, He was sensitive. राइट महाराज, प्रणाम जी. अच्छा, चलो शिवानी. देवाशीष ने महाराज जी. आ जाइए देवाशीष, आ जाइए. हाँ महाराज जी, मेरा प्रणाम महाराज जी. मेरा पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 97. जी. Here the Sri Ramakrishna is saying he is the cause of the gross objects as well as the subtle mind and intellect. मतलब God is the cause of the gross objects, yes, as well as the subtle mind and intellect. My question is God the cause of our gross body, mind and intellect? अरे ये तो बोला, ये तो this is what is being taught. मैं इसका पहला नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ. If that is so true, then why do we have to struggle for internal purification? When you struggle for internal purification, that also will be done by Thakur God. तो सेल्फ एफर्ट का कहाँ जगह है? हाँ? तो सेल्फ एफर्ट रहे नहीं. If God is doing everything. You say, you know, the mind is made by body, Krishna, God. Mind is made by God, isn't it? First, yes, you are telling it. Now, mind is made by God, and body is also made by God. Yes. And body is also kept by God. Yes. Body is getting up old by God. Body is getting rich by healthy by God. Body is moving also with God. Similarly, the mind is also moving with God. Mind is going up and down also with God. So God has not only made the body and mind, He is also making use of them. Ji Maharaj. You accept that body and mind is made by God, yes, but Maharaj, you don't accept that body and mind are being used also by God. अभी चल फिर रहा है ये मन, ये भी मन के भगवान के कारण ही चल रहा है. और ये शरीर भी भगवान के कारण ही चल रहा है. तो सब उन्हीं के कारण हो रहा है. तो हम लोग इतना एफर्ट कहाँ लगाऊंगा कि भाई इंटरनल प्यूरिफिकेशन करना चाहिए? नहीं, ये नहीं, ये जो आप क्या एफर्ट लगाएंगे वो सब भगवान लगाएंगे. अच्छा. हाँ, यहाँ तुम भगवान को ले आए हो ना. हाँ, तो भगवान लगाएंगे. वेरी गुड, थैंक यू. अच्छा. तुम जैसे बॉडी मेड बाय गॉड. तुम्हारे जन्म के समय तो बॉडी मेड बाय गॉड. यस. उसके बाद में धीरे धीरे बड़ी हुई तो वो भी गॉड में बनाए, गॉड ने की ना. तुम बड़े हुए, मोटे हुए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो ये भी गॉड ने किया ना. जी महाराज. तो फिर जब तुम पढ़ने लिखने लगे, समझने लगे, तो ये भी गॉड ने किया. तो वो जितने अब जो काम सब कर रहे हैं वो भी गॉड कर रहे हैं. तो ये क्यों नहीं होगा? जैसा होगा वो सब भगवान के कारण ही होगा. इसका मतलब सेल्फ एफर्ट का जगह नहीं है कोई. है? सेल्फ एफर्ट बोल के कोई कुछ है नहीं है. गॉड इज नहीं, सब नहीं. Once you have taken this view, everything is being done by God. जी महाराज. पर महाराज उसमें यदि कुछ गलत काम हमसे हो गया तो वो क्या कहेंगे? कुछ गलत जो आदमी 100% इतना कन्विंस्ड है कि मैं, भगवान ने मेरा शरीर बनाया, भगवान ने मेरा मन बनाया है, उन्होंने सब कुछ किया है, उससे गलत काम होगा ही नहीं. जी महाराज. जी महाराज. जी महाराज. जी महाराज. जी महाराज.
राइट, ठीक है, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन में जाता हूं मैं, पेज 97-98 में जी। श्री रामकृष्ण सेड इन द बिगिनिंग one should move forward on the spiritual path holding to an initial faith, that is the words of the scriptures and the guru. One then attains direct perception. My question is, what is direct perception? एक मिठाई आपके सामने पड़ी हुई है जी महाराज। जब आप कहेंगे, ये कहते हैं कि मिठाई मीठी है, तो मीठा कैसा होता है, उसको मुंह में रखिए तब आपको पता चलेगा कि मीठा कैसा होता है। हाँ, डायरेक्ट परसेप्शन हुआ, ये हुआ डायरेक्ट परसेप्शन। हाँ। उसी प्रकार से जब आप ध्यान जब करेंगे तो उसको एक एक्सपीरियंस होगा, इंटरनल मेंटल एक्सपीरियंस होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट परसेप्शन। और इसके कई प्रकार के लेवल्स होते हैं। तो देवाशीष का डायरेक्ट परसेप्शन श्री रामकृष्ण के डायरेक्ट परसेप्शन जैसा नहीं होगा, उसमें फर्क होगा। वो दूसरे ऊंचा प्रकार का होगा, नीचा प्रकार का। एक छोटा बच्चा भी जो है ना, वो कुछ आंख में सपने में देखता है, कुछ देखता है, तो उसको डायरेक्ट परसेप्शन तो माँ के पास जाता है, डर जाता है ना, डरता है कि नहीं डर जाता, तो वो हुआ था एक प्रकार का इंटरनल परसेप्शन। वो बहुत डर जाता है ना, बच्चा कभी कभी बहुत डरता है जी। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में मानसिक परसेप्शंस होते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। जी महाराज जी, ठीक है। तो महाराज जी, ये डायरेक्ट परसेप्शंस जो होते हैं, ये तो सेंस ऑब्जेक्ट का नहीं है ना, माने जो पांच सेंस माइंड मन में होते हैं, मन में होते हैं डायरेक्ट परसेप्शन। अच्छा, अब यूं तो डायरेक्ट परसेप्शन आंख से देखना, मंदिर में जाए कि हमने मंदिर में मूर्ति को हमने डायरेक्टली देखा। अच्छा, हाँ। पहले हमने मूर्ति के बारे में सुना था, अब डायरेक्टली जाके देख रहे हैं। हाँ। अब तुम चाहो तो इसको भी डायरेक्टली परसेप्शन ले लो। ये अच्छा, आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। So यहाँ पर there are two kinds of faiths, initial faith and the real faith. Faith that comes from the direct perception. तो what is the direct experience? जब माइंड में होता है, माइंड में एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने कहा ना, माइंड में। सेकंड पहला पार्ट तो है एक इनिशियल, और सेकंड होता है फाइनल। फाइनल जो है माइंड में होता है। अरे कौन बोल रहा है? कि कोई बात कर रहा है, उसको बंद करने बोलिए। कॉपी नारकेल क्या क्या बोल रहा है सब? ईतू जी का होगा, उसको बंद करने बोलिए। हो गया, चलो। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर दो फेथ का बारे में बताया, एक तो बोला इनिशियल फेथ, एक फाइनल फेथ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। यस, जो फाइनल फेथ जब डायरेक्ट एक सच पूछा जाए तो फाइनल फेथ यहाँ करेक्ट लिखा नहीं है। I did not like this final faith. There is nothing. Final faith is experience. अच्छा, एक्सपीरियंस हो गया तो फेथ का प्रश्न क्या उठता है? अच्छा, हाँ, फाइनल एक्सपीरियंस। अच्छा, it is an experience. There is no question of faith. इसका मतलब इनिशियल फेथ का बारे में बाद ही एक्सपीरियंस आ जाता है। हाँ, इनिशियल फेथ हो तो जैसे दीक्षा लिया सर ना, इनिशियल फेथ तो है यहाँ भगवान है, लेकिन जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सेकंड की बात प्रश्न, सेकंड फेथ की प्रश्न का उठता है। इट इज एक्सपीरियंस, इज नॉट द सेकंड फेथ। जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, समझ में आया। तो ये जो है अब सेकंड पार्ट जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये मेडिटेशन ही होता है ना? हाँ, नेचुरली। अच्छा, ओके, ठीक है महाराज जी, ठीक है, थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में श्री रामकृष्ण सेड, लिसन, he who comes here for God realization or to attain knowledge, his desire will be fulfilled. Let me say again, his desire will definitely be fulfilled.
since Sri Ramakrishna has left his body, and does it mean that getting mantra diksha from a guru of Ramakrishna parampara will ensure God realization or to attain knowledge? That means ये जो श्री रामकृष्ण जो जिससे बताया, जो श्री रामकृष्ण ने जो कहा है, हाँ, if anyone comes to me, yes, that means now Sri Ramakrishna is not there, yes, but if he comes and takes diksha in Ramakrishna of Ramakrishna's mission, etc., he has also come. He has come to Sri Ramakrishna. Thank you. मतलब है कि he is sincere. He is sincere and he wants God relation. That is why he has come. Yeah. Thank you, Maharaj ji. Now, question number 4. 4 है कि through trials and tribulations, God tests the faith of his devotees. Through trials and tribulations, God tests the faith of his devotees. My question is, how will the devotee come to know that God is testing his faith? By faith. Achha. How? He need not bother about it. Yes. He did not bother about it. Everything is happening as by faith. अच्छा. Oh. जब क्रिटिकल टाइम आ जाता है महाराज जी, तब तो हमारा माने वी बिकम वेरी मच टेंस्ड एंड वेरी मच वरीड, तो उसमें हम लोग को लगता नहीं है कि गॉड है कि इसे संसार में अप्स एंड डाउन्स, सफरिंग्स एंड जॉयस, दिस विल ऑलवेज रिमेन. यू मस्ट होल्ड ऑन टू फेथ. अच्छा. तो ये दैट इज टेस्ट एंड ट्रिब्यूलेशंस, जितने अप्स एंड डाउन्स जो अभी बताया आपने, तो यही सब के टेस्ट एंड ट्रिब्यूलेशंस है. you can say that they are test and tribulations. अच्छा, लेकिन अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा परीक्षा मत लो, हम फेल कर जाऊंगा, तो ये हमको शरण में ले लो, तो ये हमको पास कर देंगे ना? Oh yes. और करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है. वो हमारी इच्छा से थोड़ी चलेंगे भगवान, हमारा प्रार्थना से तो चलेंगे. उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, भगवान की इच्छा से. हमारा काम प्रार्थना है. नहीं, अगर मेरा प्रश्न यही है कि शुरू से भी हमको पता चल गया कि ये भगवान ने टेस्ट कर रहा है हमारा, तो भगवान के उसी तरह से हम प्रार्थना करें कि भगवान मेरा परीक्षा मत लो. भगवान ये कहेंगे कि बिना परीक्षा के तुम आगे प्रगति भी नहीं कर पाओगे, मैं फेल कर जाऊंगा. नहीं ऐसा नहीं होगा. प्रगति करो, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार में 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में धीरे धीरे पहुंच जाओ. जी महाराज, एक्चुअली इनका शरण में आ जाने से सब कुछ हो जाएगा ना महाराज जी? नहीं तो भी नहीं, बिना भगवान के शरण में जितने लोग आए हैं उनको ज्यादा अधिक कष्ट सहन करने पड़े, मालूम है कि नहीं? हाँ जी महाराज. फिर लेकिन वो तो भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के साथ ही रहे थे. जी महाराज. लेकिन जितने कष्ट पांडवों ने सहन किया उतने कितने ने किया, बोलो? किसी ने नहीं किया. लेकिन उनका एक ही ये था कि भगवान मेरा साथ में है, तो सब परीक्षा में हम लोग पास कर जाएंगे, ये फेथ उनका था. तो आप फेथ रखो तो करो. अच्छा, करना है. जी महाराज जी. अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, वन शुड कॉन्स्टेंटली लिव इन द कंपनी ऑफ होली मैन. तो ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ा बहुत टच हुआ है. इफ द होली कंपनी इज नॉट अवेलेबल फॉर द हाउस होल्डर्स, what is the way out? Can visiting a devotee's house have satsang or listening to the lectures in YouTube or the holy person? YouTube में कोई होली किसी का सेंट का संत का प्रवचन सुन लिया, and reading books be considered as holy company? Yes sir, including Zoom meeting. वो तो बड़ी रेयर है, संडे में एक बार होता है. वो संडे में एक बार होता है या ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है? अब जैसा भी करो, ये सब जो है होली कंपनी है. नहीं, आपने तीनों चीज को एग्री किया. एक तो है कि कई डिवोटीज का घर चले जाओ, सत्संग करो, या कोई यूट्यूब में लेक्चर सुनो, और
कोई किताब पढ़ो। तो ये तीनों चीजें होली कंपनी होगा। तीनों गिने, बहुत सारी और चीजें हो सकती है। क्या क्या आजकल के मॉडर्न जमाने में यूट्यूब और मोबाइल फोन के जमाने में तो बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, सत्संग हो सकता है। अच्छा, तो अब अच्छा ही है कि उसमें इतना परेशान नहीं होने का जरूरत नहीं। थैंक यू महाराज जी। अच्छा, और एडिशनल लास्ट क्वेश्चन है महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 111 में श्री रामकृष्ण सेड टू Surendranath Mitra that a little manliness is necessary for everyone. A little manliness is necessary for everyone. And Swamiji is also said at some place in Complete Works, the older I grow, the more everything seems to lie in manliness. This is my new gospel. तो मेरा क्वेश्चन है महाराज, आर दिस टू सेम? आत्मविश्वास। क्या बोल रहा? और ये महाराज जी मैं क्या रिपीट करूं? नहीं, what your question एंड में क्या बोला? My question is भगवान श्री रामकृष्ण सुरेंद्रनाथ मित्र को बोल रहे हैं कि a little manliness is necessary for everyone. Swamiji in his Complete Works is saying that the older I grow, the more everything seems lie in manliness. This is my new gospel. तो ये दोनों manliness जो बात कर रहे हैं गुरु स्वामी श्री रामकृष्ण एंड स्वामी जी, दोनों सेम है? Same. Oh. They are the And same if thing. not, then what is the ऐसा है, मतलब ये क्या है manliness का actually? Listen. निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, वो तो लेडी थी ना, लेकिन इंडिया में उन्होंने इतना काम किया। इसको बोलेंगे how manly she was. Yes. And you got the question answer. Yes. Okay. Many obstacles came, but he ignored all those small things. That is manliness. अच्छा, एक तरह से पुरुषाकार भी बोल सकते हैं। पुरुषाकार, वही तो ओके। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्यों बताया महाराज जी कि द ओल्डर आई ग्रो, मतलब भाई जितना मेरा उम्र बढ़ती जा रहा है तो मुझे मनलीनेस लगता है कि दिस इज द न्यू गॉस्पेल, ऐसा क्यों बताया? नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस होता है, more experience comes, I realize the importance of manliness more and more. That is all. Not तो ये मेरा as I grow, my experience shows me that we must have more and more manliness. The importance of manliness goes on increasing in my mind. अच्छा, तो ये मैनलीनेस को हम लोग गॉडलीनेस नहीं रिप्लेस करते, गॉडलीनेस कि भगवान ही सब कर रहे हैं? भगवान मैनलीनेस को he is not talking of godliness. नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न यही है कि जब मैनलीनेस को हम गॉडलीनेस को से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, godliness and manliness are different. नहीं, मेरा जैसे उम्र बढ़ती जा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ती जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। Here it is a question only of manliness. Lord, don't mix with godliness. अच्छा, don't at all mix up with godliness. But usually क्या होता है ना, लोग जितना grow, there's a different quality you develop, entirely different. ओहो, अच्छा। You are bringing godliness. I am not talking. Swamiji is not talking of godliness. Yes. Why are you mixing it with us? नहीं, मैं मिक्स अप नहीं कर रहा हूँ। जब लोग आम तौर से देखा जाता है कि भगवान ही सब करता है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ ये बात नहीं होगी, वो अलग बात है, दोनों अलग बात है। डोंट मिक्स करो। जी महाराज, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम डिस्टर्ब कर दिया। सतीश जी,
जी प्रणाम महाराज। एक मिनट महाराज। पहला प्रश्न पूछिए। जी मिल गया महाराज, प्रणाम। फर्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर advises Manmohan to meditate on God in solitude. What does mean by solitude? mean ये आपने वैसे क्लियर कर दिया है, कोई भी स्थान पर बैठे कर सकते हैं। एक आध में अपने कमरे में बैठ कर करो ना, हो गया, सॉलिट्यूड हो गया। अच्छा महाराज, अच्छा वहां पर भी हो सकता है। जी महाराज। Thakur also does not tell him on whom to meditate, on formless God or God with form. Go do accordingly what Guru has told you to do. ठीक, उसकी जिसका टेम्परामेंट होगा उससे कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, there are two types of faith, initial faith and faith after some experience of God. Maharaj, doesn't initial faith on the basis of intellectual understanding of God, just like atheism? No, 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 no. Atheism is absolutely against faith. जी नहीं, वो ठीक है, लेकिन मतलब कि है तो दोनों में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही है। अरे इंटेलेक्ट जो है ना, इंटेलेक्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सतीश विवेक सामने नहीं है, कोई नहीं है वहां पे, ये इंटेलेक्ट से प्रूव किया जा सकता है। इंटेलेक्ट को यहाँ क्यों लाते हो? अगर इंटेलेक्ट से ये प्रूव हो सकता है कि ये भगवान है, तो ये फेथ हो गया, खत्म हुई बात। डोंट ब्रिंग इंटेलेक्ट इन एवरीथिंग। इंटेलेक्ट जो है ना, इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। Just today you are arguing in one way, tomorrow you will argue in a different way, and both will be intellect. Never bring intellect. Intellect will destroy you. क्या हुआ? फंस गए सतीश? क्या हुआ? सतीश हमारा जो नेट थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, मैं अपनी वीडियो बंद करके पूछता हूँ। कहाँ चला गया? एक मिनट महाराज। When Satish, जी महाराज, जी महाराज। when faith is there, don't give importance to intellect. Yes. You always give tremendous importance to intellect, and then you get confusion, nothing else. जी जी महाराज, नहीं मैं उनको यही तो कह रहा हूँ महाराज कि इंटेलेक्चुअलिज्म इज नथिंग बट कंफ्यूजन। तो उसके बेसिस पर फेथ कैसे हो सकता है? नहीं, किसने बोला? उसके बेसिस पर नहीं, faith don't bring here that. फेथ तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हो सकता है हमारा, कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, हमने कुछ किसी में देखा, कोई समझा देगा तो समझ में आ जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझा दिया, खत्म हुई बात। लेकिन अगर वो फेथ केवल इंटेलेक्ट पे होगा तो वो इंटेलेक्ट से नष्ट भी हो जाएगा। And Satish, one next question. Second, since you have taken up this question, raise this question of intellect. I have seen you for so many years. Please be careful about your intellect. You are too intellectual, and they are continuing to produce confusion in your mind. Be very careful from onward. जी महाराज, इंटरेक्ट के बीच में नहीं लगाना उसको, बीच में नहीं लाना उसको। चलो second. Next question महाराज. This world is a framework of illusion. Again, this world is a mention of mirth. Maharaj, how to see world a framework of illusion as a mention of mirth? Mention of mirth. Those two things are different. Just उसको दिखना नहीं है, ये वर्ल्ड जो फ्रेमवर्क ऑफ इल्यूजन है, उसको हम देख तो रहे हैं, गाना में मत कहाँ है?
नहीं, गाना जो ये गाना है वो कहता है ये संसार धोखा टट्टी, बंगाली में है ये। जी जी ये संसार जो है जी ये जी धोखे की, इसमें सब धोखा ही धोखा धोखा है। जहाँ जाओगे जी लोग धोखा धोखा देंगे तुमको। जी लेकिन दूसरा गाना है वो तक है, जी ए जी मजार कुटी, ये दिस इज संसार जो है करेक्ट महाराज। मजा की कुटिया है। तो जो लोग भगवान को पकड़े रहते हैं, अच्छा जीवन उनके पकड़े लिए रहते मजाक हैं, अच्छा कुटी। करते हैं, उनके लिए मजा है ये। और ये लोग बदमाशी करते हैं, उनके लिए कष्ट है ये। धोखा टाटी। महाराज जी क्या है कि आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, नेट की प्रॉब्लम है। और कोई क्वेश्चन नहीं सुनाई है? दे रहा है तो सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं महाराज। लिविंग इन गॉड मीन्स हाँ, दैट वन ऑफर्स बॉडी एंड माइंड टू have constant recollectedness of God. महाराज, how can we offer our body and mind to God? महाराज जो मन जो है वो बॉडी है, वो तो संसार के काम कर रहा है और मन आधा हमारा संसार में है, तो हाफ मन से कैसे होगा? एक हाथ ये देखो एक एटीट्यूड के ऊपर है। कुछ लोग संसार में रहते हैं और वो समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जी हमारा शरीर भी भगवान चला रहे हैं, मन भी भगवान चला रहे हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। मन भी भगवान चला रहे हैं। जी जी और सब मन में भी भगवान किसी का कारण ही प्रश्न उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं। इसको अगर पकड़ रह गए जी जी। तो सब कुछ भगवानमय हो जाएगा। तो शरीर बनाया ही नहीं, बना भी रहे हैं और और महाराज चला भी अच्छा रहे हैं, कि सब कुछ भगवान का हो जाएगा। जी महाराज, महाराज अभी क्या है कि महाराज अभी कहते हैं कि जो अगर हमारे मन में कोई गलत बात उठी है तो वो उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, भगवान को कैसे दोषी ठहराएं? देखो, जो ठीक ठीक भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित है, जो समझता है कि भगवान चला रहे हैं, उनके मन में गलत बात उठती ही नहीं है। अभी हम पूरी तरह भगवान में समर्पित नहीं है, इसलिए गलत बात उठ रही है। जी जी महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन। Manmohan knew that his daughter will die, but she survived by Thakur's grace. कि महाराज वाज इट मिरेकल जैसे क्राइस्ट परफॉर्म करते थे, मैं ऐसा कह कौन सकते सा हैं? कौन सा कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन महाराज। और क्या हुआ था? उसकी डॉक्टर जो है तो वो सरवाइव कर गई बाय ठाकुर ग्रेस, मनमोहन की डॉक्टर। हाँ, हाँ, तो कह सकते हैं कि ये मिरेकल था, जैसे कि क्राइस्ट हाँ, मेरा जीसस कह क्राइस्ट सकते परफॉर्म। हैं भगवान की कृपा से हुआ, ऐसे कह सकते हो ना। जी 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 महाराज। तो लेकिन जो जैसे क्राइस्ट के लाइफ में था कि वो इस तरह के करते थे, मेडिकल हाँ, तो बोलते श्री हैं उनको। रामकृष्ण के जीवन में दो चार कथा घटनाएं मिल सकती है आपको। ठीक ठीक हो सकता है महाराज। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। What are your attachments to God and He will reveal Himself unto you? Maharaj, it is possible for worldly man to divert all his attachments to God. How? आप सारी अपनी अटैचमेंट गॉड की तरफ कैसे डिवर्ट करें? देखो, पहली बात 202-3 के प्रोसेस है। जी पहला यह है कि ये पहले जो है अपने मेंटली अपने सांसारिक अटैचमेंट को कट करना पड़ेगा। यस जी महाराज जी। दूसरी बात है कि मेक नो न्यू अटैचमेंट मत बनाना। जी राइट राइट महाराज। और जी जिनसे तुम्हारा अटैचमेंट है, ये भी तीसरी बात है, पॉजिटिव बात यह है कि जिनसे अटैचमेंट है उनको समझो कि ये भगवान है। हाँ माँ से अटैचमेंट हो तो समझो कि माँ भगवान है। पत्नी से राइट राइट। अटैचमेंट समझो तो समझो कि पत्नी से अटैचमेंट नहीं, भगवान से अटैचमेंट है। पुत्र को से अटैच है तो समझो कि पुत्र जो है वो भगवान है। जी महाराज, जी महाराज। उनकी सेवा करनी है, हाँ, उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा करो। ऐसा है जी महाराज। लास्ट कि क्वेश्चन अगर महाराज। ये एक प्रकृति यदि निरंतर भगवान का
मन को यदि भगवान में दे तो वो फिर वो संसारी रहता ही नहीं है। तो अपने आप को ही सोचते लोगों कि मैं भगवान का हूँ, अपने आप को संसारी क्यों समझते हो? यहाँ जो संसार को बदलने की बात कहते हैं ना, संसार के प्रति जी महाराज। अटैचमेंट के लिए भगवान के प्रति, अरे संसार तो है ही नहीं, मैं भगवान का ही हूँ, संसार ही नहीं है, जी। ऐसा भाव करना पड़ेगा। ओहो। संतों के जीवन में देखो किस प्रकार से सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। Last question, Maharaj. हाँ, What was in Surendra that Thakur would ignore all his shortcomings? हाँ, सुंदर में क्या बात थी किसका कि ठाकुर किसका सुंदर में किसका क्या किसका सुंदर में क्या बात थी कि ठाकुर ने सारी उसकी शॉर्ट्स कम्स को इग्नोर कर देते थे, फिर भी उनको अपना समझते थे। किसके 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 सुरेंद्रनाथ। सुरेंद्रनाथ। सुरेंद्रनाथ को। सुरेंद्र, उनका डिवोशन डिवोशन टू गॉड, उसकी भक्ति उसका फेथ। भक्ति के कारण। अच्छा, he had tremendous faith in him. श्री रामकृष्ण। हो गया। ये प्रणाम महाराज, ये प्रणाम। नेट की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, नहीं होगा। बंद करें क्या कि नहीं करें? नहीं, शिवानी जी है ना, शिवानी जी का है ना, शिवानी का नहीं हुआ महाराज। अब बोलो शिवानी। प्रणाम महाराज। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। हाँ, तुम्हारे प्रश्न नहीं हुए। हाँ जी महाराज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज 96। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लायन स्किन टू सिट फॉर पूजा? अच्छा, ऐसा है कि वो शेर में दृढ़ता रहती है, शक्ति होती है, तो हम जब बैठेंगे ध्यान में तो वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगी। शेर की दृढ़ता शक्ति के साथ में हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। शेर की शक्ति, शेर की दृढ़ता, संघर्ष करने की क्षमता इत्यादि के साथ आप बैठिए तो आपका मन भगवान में इसी भाव से लगाइए कि ये सारे गुण हम में आवे और ये भगवान की ओर चले जाए। ठीक है, ठीक है महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 96। व्हाट इज द ड्राई मेडिटेशन? ड्राई मेडिटेशन तो कहाँ पे मेरे को मिला नहीं है 96 पेज पे, तो मैंने देखा भी तो इसको कहाँ पे वो ड्राई मेडिटेशन तो दिखा नहीं। ड्राई मेडिटेशन ब्राह्मण समाज के लिए बोला है। समाज का मेडिटेशन, ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए बोला है। मैकेनिकल जो मेडिटेशन होता है, इंटेलेक्चुअल मेडिटेशन, इंटेलेक्चुअल। वैसे ब्राह्मण समाज केशव सेन लीडर नोटिस मनमोहन क्लोज एसोसिएशन 96 में ना। हाँ जी। तो उन लोगों का जो था ना, वो बैठे हुए हैं, उनमें रस नहीं आ रहा है, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बस एक रूप के ऊपर मन लगा दिया है, लेकिन मन में आनंद नहीं आ रहा है, उसको ड्राई मेडिटेशन कहते हैं। और हमारे जीवन में भी तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कभी कभी देखोगे कि हमारा मन जो है वो ड्राई मेडिटेशन हो रहा है। अरे आज आधा घंटे बैठे और हमको कुछ मजा ही नहीं आया। तुमको नहीं आता है क्या? तुमको हमेशा आनंद आता है तो बढ़िया बात है, उसको ड्राई मेडिटेशन बात मत 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 सोचो। ठीक है महाराज। महाराज जी इस सिलसिले में एक चीज पूछूं मैं महाराज जी, ये ड्राई मेडिटेशन हो, पूछूं मैं क्या? बोलिए, जल्दी बोलो। आपका ये ड्राई मेडिटेशन हो या आनंदमय मेडिटेशन हो, हमें तो कंटिन्यू करना ही चाहिए, बिकॉज आई हैव टू ट्रेन माय माइंड। माइंड तो भागता है इधर उधर। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर, दैट इज नॉट द पॉइंट। अच्छा, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जैसे ड्राई भजन भी होता है ना, भजन करते रहते नाम गुणगान, मन नहीं लगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। चलो 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 पर थर्ड क्वेश्चन। Third question, page 104. Divert all your attachments towards God. So my question is how we can divert our attachments towards God.
डिस्कस तो हो गया अभी एक प्रश्न। हाँ हाँ जी हाँ जी। कितनी बातें बता दी उसके, 3-4 मेथड बता दी मैंने। नहीं मिली तुमको? कौन सा पेज, पेज नंबर? मैंने तो पूरा डिटेल में बता दिया। 114 बताया डिटेल में। हाँ, मैंने कहा कि पहले दूसरे अटैचमेंट बंद करो, कम करो, जिससे अटैचमेंट करो उसे भगवान समझो और न्यू भगवान में भक्ति अटैचमेंट मत करो। रखो। हाँ, तीन बातें मैंने कही। हाँ, 3 तीन बातें बातें मैंने। बताई। हाँ, एक सांसारिक अटैचमेंट कम करो, दूसरा न्यू अटैचमेंट मत लगाओ करो, और And जिससे presence अटैच of हो God. भगवान सोचो। भगवान में करो, और जितने लोगों को अटैच कर रहे हो उनको भगवान समझो। समझो। ठीक है। Next question, Maharaj, page 112. His sensitive ego crushed and became humble. What is this sensitive ego? कोई लोग जो है, जरा सा तुमने एक बड़े अहंकारी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मैं समझते मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। उस व्यक्ति को आप बड़ा सा बोल दो, अरे हट जा मेरे रास्ते से, तो क्या करेगा? वो अहंकारी है ना, वो सेंसिटिव ईगो है, वो गुस्सा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इतना अहंकारी होना, जरा जरा सी बात के लिए सेंसिटिव होना, इसको सेंसिटिव ईगो बोलते हैं। ठीक है। Last question, Maharaj, page 113. If you have money, give charity. If you don't, chant your mantra. How is this linked, money and mantra? वैसे आपने बता दिया है काफी कुछ डोनेशन का और वो। हाँ, वो ऐसा है कि वो मन जो है, वो मन के अंदर भरा स्पेस है ना, मैंने क्यों कहा था, मन में स्पेस है, तो वो 1000 रुपए से भरी हुई है। तो तुमसे 500 रुपए डोनेट कर दिया, तो 500 रुपए की स्पेस जो है आ गई, उसमें भगवान को भर दो, इस प्रकार मैंने किया था। चैरिटी से जो है मन उदार होता है, सरल होता है, कई वैल्यूज हैं, आसक्ति कम होती है, लोभ कम होता है, और इसलिए ये भगवान के लिए अधिक उपयोगी होता है मन जिसमें चैरिटी होती है। ठीक है महाराज, आपने नया चीज बताया महाराज। नहीं, अब महाराज जी हम ये समझते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, उसको हमारे वहां से जाना है। अब जाने के 2-3 रास्ते हैं। आप गलत काम करो उसमें लक्ष्मी जाएगी, आप मौज मजा करो उसमें लक्ष्मी जाएगी, या ईश्वर को अर्पण करो तो उसमें जाएगी। तो क्या करना वो हमें सोचना है। भैया आप लोग जानो जिनके पास लक्ष्मी है, हमको क्यों बोल रहे हो? चलो थोड़ी लक्ष्मी हम आपके चरणों में धर देंगे महाराज। वो होता क्या है, हमारे यहाँ जैसे चरणों में रखते हो ना, हाँ, तो हमारे यहाँ पे एक ही रास्ता है जी, वो उसको उठा के हम चले जाते हैं ऑफिस, जी, और वो कैसेट से बोलते हैं कि भैया ये मेरे नाम से ये वो ले लो डोनेट। अच्छा, तो मैंने दिया था, वो मेरे को दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? तुम डोनेट कर दो, हमारे पास एक ही रास्ता है। अच्छा, और या फिर मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, स्टोर में पैसे दे देते हैं, तुम दवाइयाँ खरीदना है, जितनी जरूरत की दवाइयाँ खरीदना है वो खरीद। राइट, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है ना हमारा, तो है ना, ये समस्या हो जाती है, पैसा लेना मिलना, प्रणामी मिलना एक प्रकार की समस्या है। महाराज जी ऐसा होता है कि हम सही जगह पैसा नहीं पहुंचा सकते, तो ये तो बहुत अच्छा है कि हम प्रणामी आपको दे तो सही जगह चली जाएगी। अरे यार, तो तकलीफ तो मेरे को होगी ना। अब महाराज जी भक्तों के मेरे को उठा के दूसरे को बोलना देना पड़ेगा। नहीं, पर भक्तों के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी। तो यार डायरेक्टली रामकृष्ण मिशन को बोल दो ना, भेज दो पैसा। अच्छा, राइट, जी महाराज, जी महाराज। जय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी। स्वामी जी, महाराज जी। स्वामी जी प्रणाम।